Hello students, good morning. Today we are going to see Servlet Config interface and Servlet context interface. Now let's see what is Servlet Config interface. An object of Servlet Config is created by the web container for each servlet. Servlet config का जो ऑब्जेक्ट है ये हर कंटेनर क्रिएट करता है सर्वलेट के लिए. This object can be used to get configuration information from web.xml file. ये क्यों यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है कि web.xml फाइल से जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है वो ली जाए. इसके लिए सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज किया जाता है. If the configuration information is modified from the web.xml file, अगर configuration information जो है हमारी वो modified की जाती है web.xml फाइल में, then we don't need to change the servlet. हमको servlet change करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So it's easier to manage the web application if any specific content is modified time to टाइम. तो ये इजी हो जाता है वेब एप्लीकेशन के लिए. अगर कोई टाइम टू टाइम हमको मॉडिफाई करना है कोई कंटेंट, तो उसके लिए बार बार सर्वलेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग. नाउ देयर आर सम मेथड्स ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस. फर्स्ट मेथड इज public string get init parameter. String name returns the parameter value for the specified parameter name. ये parameter value return करता है, जो भी तुमको parameter name का parameter value चाहिए होगा, तो ये वाला मेथड है उसके लिए. सेकेंड है public enumeration get init parameter name. Return the enumeration of all the initialization parameter name. जितने भी parameter initialize हुए उनका enumeration करके देंगे, count करके देंगे कि 4 parameters initialize हुए, 5 parameters initialize हुए. Then है third public string get servlet name. Return the name of the servlet. It will return the name of the servlet. Then fourth है public servlet context get servlet context. Return an object of servlet context से object return करेगा. Then हमारा next topic है servlet context interface. An object of servlet context is created by the web container at a time of deploying the project. ये भी कौन क्रिएट करता है? वेब कंटेनर ही क्रिएट करता है. बट कब क्रिएट करता है ये? जब हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं. डिप्लॉय मतलब यूज में लाते हैं जब प्रोजेक्ट का, तो उसको बोलेंगे डिप्लॉय. डिप्लॉयमेंट के टाइम पर उसका यूज होता है. This object can be used to get configuration information from web.xml file. ये भी web.xml फाइल से इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज किया जाता है. देयर इज ओनली वन कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर वेब एप्लीकेशन. ये वेब एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वेब एप्लीकेशन के लिए. हाँ, if any information is shared to any servlet, it is better to provide it from web.xml file using context param एलिमेंट. कॉन्टेक्स्ट पैरम का एलिमेंट का इस एलिमेंट का यूज करके हम जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे सर्वलेट को शेयर कर सकते हैं. Now, what are the advantages of servlet context? Easy to maintain. If any information is shared to all the servlet, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमको पूरे सर्वलेट को शेयर करनी है तो वो इजी हो जाता है, हमको मेंटेन करना उसको इजी हो जाता है. इट इज बेटर टू मेक इट अवेलेबल फॉर ऑल द सर्वलेट. हर सर्वलेट के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल करना इजी हो जाता है. किससे इजी होता है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से. वी प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम web.xml फाइल. ये हम इंफॉर्मेशन किससे प्रोवाइड करते हैं? web.xml फाइल से. सो if the information is changed, we don't need to modify the servlet. Thus, it removes maintenance problem. Maintenance की problem remove करता है. कैसे remove करता है? क्योंकि अगर हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज की है तो हमको सर्वलेट को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये उसका एक एडवांटेज है. नाउ यूसेज ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस. There can be a lot of usage of servlet context object. Some of them are as follows. Number one, the object of servlet context provide an interface between the container and servlet. ये interface provide करता है किसके बीच में? servlet के बीच में और container के बीच में एक interface provide करता है. The servlet context object can be used to get configuration information from web.xml file. web.xml फाइल से जो configuration information हमको चाहिए होती है वो लेने के लिए इसका object यूज किया जाता है. Now, इसके भी कुछ methods है. Common used method of servlet context interface are as follows. Number one, public string get init parameter. Return the parameter value
फॉर द स्पेसिफाइड पैरामीटर नेम। ये भी क्या करता है, पैरामीटर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ऊपर हमने सर्वलेट इसमें देखे थे सर्वलेट कॉन्फ़िग में, वैसा ही सेम मेथड है ये वाला भी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का। सेकेंड है पब्लिक इनुमरेशन गेट इनिट पैरामीटर नेम रिटर्न द नेम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। पैरामीटर के जो इनिशियलाइज पैरामीटर है उनके नेम रिटर्न करेगा। देन पब्लिक वॉइड सेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग नेम कॉमा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेट द गिवन ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन स्कोप में ऑब्जेक्ट सेट करता है। देन पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट रिटर्न द एट्रीब्यूट ऑफ द स्पेसिफाइड नेम एट्रीब्यूट रिटर्न करेगा। देन पब्लिक वॉइड रिमूव द एट्रीब्यूट विद द गिवन नेम फ्रॉम द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से वो क्या करेगा, एट्रीब्यूट रिमूव करेगा। ये वो इसके मेथड्स। Now our next topic is difference between servlet context and servlet config. Now let's see the difference between them. Servlet config object is one per servlet component और class servlet config सिर्फ एक होता है, एक servlet के लिए एक servlet config object create होगा. But what about servlet context? The servlet context object is one per web application. ये एक web application के लिए होता है. एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एक वेब एप्लीकेशन के लिए, और ये क्या होता है, एक सर्वलेट कॉन्फ़िग एक सर्वलेट के लिए या फिर एक क्लास के लिए। देन इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द कॉन्फ़िगर्ड सर्वलेट क्लास। ये सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, सर्वलेट क्लास ही एक्सेस कर सकता है। इट इज, और ये वाला सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इट इज विजिबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल द सर्वलेट और जेएसपी कंपोनेंट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ये सारे सर्वलेट के लिए और सारे जेएसपी कंपोनेंट के लिए विजिबल भी होता है और एक्सेसिबल भी होता है। सो इट इज कॉल्ड द ग्लोबल मेमोरी ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल मेमोरी। वेब एप्लीकेशन का ग्लोबल मेमोरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर जेएसपी कंपोनेंट के लिए, वेब एप्लीकेशन में जितने भी सर्वलेट है, जितने भी जेएसपी कंपोनेंट्स हैं, उन सब के लिए विजिबल भी होता है और एक्सेसिबल भी होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल मेमोरी ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। देन सर्वलेट कंटेनर डिस्ट्रॉय दिस ऑब्जेक्ट राइट आफ्टर सर्वलेट क्लास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। अगर सर्वलेट क्लास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो वो सर्वलेट कंटेनर जो है वो भी सर्वलेट कंटेनर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी डिस्ट्रॉय होगा। देन सर्वलेट कंटेनर ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय व्हेन द एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन स्टॉप और रीलोडेड और डिप्लॉयड। ये कब होगा, जब इसमें वेब एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा या फिर रीलोड होगा या फिर अनडिप्लॉय होगा, तब इसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। Then can be used to gather init param values from the web.xml file to the servlet component, और ये can be used to gather context param value from the web.xml file to the servlet component. देन है इट कैन बी एक्सेस थ्रू गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड। इसको कैसे एक्सेस करेंगे, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग से। एंड इट कैन बी एक्सेस थ्रू गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड। इसको कैसे एक्सेस करते हैं, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड से इसको एक्सेस करते हैं। दोनों का एक्सेस करने का मेथड समझ में आया, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग और इसका गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। नाउ our next topic is servlet communication. कम्युनिकेशन बिटवीन जावा सर्वलेट इज कॉल्ड सर्वलेट कम्युनिकेशन। सर्वलेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं सर्वलेट कम्युनिकेशन। हियर यूजर्स रिक्वेस्ट आर सेंट फ्रॉम वन सर्वलेट एंड रिस्पांस ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय अनदर सर्वलेट। एक सर्वलेट क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है और दूसरा क्या करता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज पास्ड फ्रॉम वन सर्वलेट टू अनदर। Can use getParameter method to get the input that the user has given in HTTP or PHP form. तो जब रिक्वेस्ट सेंड होती है एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पर, जब गेट पैरामीटर का यूज करके इनपुट जो है वो हम ले सकते हैं। ये हुआ हमारा सर्वलेट कम्युनिकेशन। देन our next topic is
Session tracking mechanism. Now let's see what is session tracking mechanism. Session tracking mechanism is used to identify a user across multiple pages or for a websites and store all the information about a particular यूजर. सेकेंड सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है मल्टीपल पेजेस पे या फिर वेबसाइट्स पे जो भी यूजर यूज करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेशन ट्रैकिंग यूज होता है. फिर क्या करते हैं ये क्या करता है और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो पर्टिकुलर यूजर की जो इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करता है पहले आइडेंटिफाई करता है फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. द सर्वलेट कैन मेंटेन सेशन इन डिफरेंट वेज. अब ये सेशन ट्रैकिंग डिफरेंट वेज में करता है. कैसे होता है इसके वेज? फर्स्ट होता है एचटीटीपी सेशन, सेकेंड होता है कुकी, थर्ड होता है यूआरएल राइटिंग और फोर्थ होता है हिडन फॉर्म फील्ड. नाउ व्हाट इज एचटीटीपी सेशन? इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ सेशन बिटवीन एन एचटीटीपी क्लाइंट एंड एन एचटीटीपी सर्वर. ये सेशन क्रिएट करता है किसके बीच में? क्रिएट करता है क्लाइंट के बीच में और सर्वर. एचटीटीपी क्लाइंट और एचटीटीपी सर्वर के बीच में क्या क्रिएट करता है? ये सेशन क्रिएट करता है. The session consists of a specified time period to store user detail. Session मतलब क्या? कि specified time period में वो user की detail store करेगा. इसको बोलते हैं HTTP session. Then there are some methods of HTTP session. Let's see what are these methods. First है public object get attribute string name. It return the object. No, sorry. First method is public void set attribute string name object value. It is used to store name and its corresponding value into the session. ये क्यों यूज करते हैं? नेम स्टोर करने के लिए और उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए सेशन में स्टोर वैल्यू स्टोर करने के लिए ये यूज किया जाता है. पब्लिक void set attribute. Then public void remove attribute. It removes the object from session storage. Session storage से क्या करता है? जो है वो ऑब्जेक्ट रिमूव करता है, एट्रीब्यूट रिमूव करता है. Then public void set max inactive interval int interval. It is used to store the maximum time in second to store the details in session. ये मैक्सिमम टाइम सेट करता है कि कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा डिटेल स्टोर करने के लिए. सेशन में डिटेल स्टोर करने के लिए कितना मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए वो सेट करेगा. सेकंड्स में होगा लेकिन वो टाइम. देन अ पब्लिक स्ट्रिंग get id. It is used to return unique identifier assigned to the session. उस सेशन के लिए जो यूनिक आईडी असाइन की जाएंगी वो रिटर्न करेगा. देन पब्लिक boolean is new. It is returned true if the client not yet joined with the session. ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. अगर क्लाइंट सेशन में ज्वाइन नहीं हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. ये हो गए मेथड्स. किसके मेथड्स देखे हमने? एचटीटीपी सेशन के मेथड्स. नाउ सेशन ट्रैकिंग देख रहे हैं बराबर. सेशन ट्रैकिंग में फर्स्ट वे था एचटीटीपी सेशन, सेकंड वे है कुकी. लेट्स सी व्हाट आर कुकीज. कुकीज नेम वैल्यू पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक नेम वैल्यू पेयर होती है. ठीक है, नेम वैल्यू पेयर होती है जो क्या करती है? इंफॉर्मेशन sent sent by the server to the client browser that gets saved at the client computer which can be used for session tracking. ये सर्वर सेंड करता है क्लाइंट के ब्राउजर पे जो सेव होती है. कुकीज कौन सेंड करता है? सर्वर सेंड करता है. किसको सेंड करता है? क्लाइंट के ब्राउजर को सेंड करता है. दैट गेट सेव्ड एट द क्लाइंट कंप्यूटर, जो क्लाइंट के कंप्यूटर पे सेव होती है. विच कैन बी यूज फॉर सेशन ट्रैकिंग. जो किस लिए यूज किया जाता है? सेशन ट्रैकिंग के लिए यूज करता है. Browsers can send requests to the server along with cookie to identify the client. Client को identify करने के लिए जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है कुकी के साथ. क्यों? क्योंकि क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सके इसलिए वो कुकी के साथ रिक्वेस्ट सेंड करता है. Add cookie method of the response object can be used to add a cookie into the client browser. Client browser add cookie का यूज करके add cookie method का यूज करके cookies क्लाइंट के ब्राउजर पर ऐड कर सकते हैं. नाउ देयर आर सम मेथड्स ऑफ कुकी. फर्स्ट इज पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम. इट रिटर्न द नेम ऑफ द कुकी. ये कुकी का जो नेम है वो रिटर्न करेगा. सेकंड है पब्लिक स्ट्रिंग गेट वैल्यू. इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कुकी. कुकी की जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा. देन थर्ड है पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू. It is used to assign a number of value to the cookie after its creation. ये क्यों यूज किया जाता है?
नेम वैल्यू असाइन, न्यू वैल्यू असाइन करने के लिए कुकी को अगर क्रिएशन के बाद न्यू वैल्यू कुछ असाइन करनी है, सेट करनी है हमको न्यू वैल्यू, तो पब्लिक वर्ड सेट वैल्यू का यूज करके न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं कुकी को। देन पब्लिक लॉन्ग गेट मैक्स एज, इट इज यूज्ड टू रिटर्न द मैक्सिमम एज ऑफ द कुकी इन सेकेंड। सेकेंड्स में कुकी को मैक्सिमम मतलब कितने टाइम तक वो कुकी चली, मतलब कि 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड्स वो रिटर्न करेगा। Then a public void set max age long expire. It is used to set the maximum age of the cookie in seconds. ये क्या करता है, हम सेट करेंगे कि इतने टाइम के लिए होना चाहिए, 2 सेकेंड्स के लिए, 3 सेकेंड्स के लिए, सेकेंड्स में ही होता है ये, तो हम सेट करते हैं कि इतना टाइम वो चलेगी कुकी, इतने टाइम के लिए रहेगी कुकी। Then public string get domain. It is used to return the domain name of the cookie. जो डोमेन नेम सेट किया गया है कुकी का वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे कितने मेथड्स है, 6, देयर आर 6 मेथड्स ऑफ कुकी। फर्स्ट इज पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा कुकी का नेम। सेकेंड है पब्लिक स्ट्रिंग गेट वैल्यू, इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कुकी, कुकी की वैल्यू रिटर्न करेगा। थर्ड पब्लिक वर्ड सेट वैल्यू, इट इज यूज्ड टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू कुकी, कुकी को अगर कोई न्यू वैल्यू असाइन करनी है तो सेट वैल्यू। देन पब्लिक लॉन्ग गेट मैक्स एज, कितने टाइम तक कुकी वो थी उसका जो टाइम है वो रिटर्न करेगा। देन पब्लिक वॉइड सेट मैक्स एज, अगर हमको सेट करनी है मैक्सिमम एज सेट करने के लिए ये वाला सेट मैक्स एज। देन पब्लिक स्ट्रिंग के डोमेन, डोमेन का नेम लेने के लिए लास्ट वाला। ये हो गया सेकेंड हमारा कुकी। नाउ थर्ड है हमारा यूआरएल रीराइटिंग। देखो यहाँ पे यूआरएल रीराइटिंग। नाउ व्हाट इज यूआरएल रीराइटिंग, लेट्स सी। URL rewriting method adds extra details to the end of the URL to identify the session. ये क्या करता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है, कहाँ पे ऐड करता है, URL में ऐड करता है, क्यों, सेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। The added informations are generally session ID or user ID that can be used for session tracking. जो इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है वो जनरली क्या होती है, सेशन आईडी होती है या फिर यूजर आईडी होती है, जो किस लिए यूज करते हैं, हम सेशन ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। URL rewriting can be used for session tracking if the browser does not support cookie. ये हम कब यूज करते हैं URL rewriting, जब ब्राउजर तुम्हारा कुकी को सपोर्ट नहीं करता है तब हम यूज करते हैं URL rewriting. The disadvantage of URL rewriting is that it needs to generate every URL dynamically to assign a session ID. सेशन आईडी असाइन करने के लिए हर यूआरएल को डायनामिकली जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि एंड में हम उसका वो डालते हैं ना आईडी, तो उसके लिए हमको उसको डायनामिकली जनरेट करना ही पड़ेगा। ये उसका डिसएडवांटेज है कि हमको उसको जनरेट करना पड़ता है। ये हुआ हमारा यूआरएल रीराइटिंग। नाउ फोर्थ वन इज हिडन फॉर्म फील्ड. Hidden field can be used to store details within the web pages that gets hidden from the user but sent to the server for session tracking. Hidden field भी स्टोर करता है डिटेल्स को वेब पेजेस में, और ये छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। किससे हाइड होता है, यूजर से। यूजर्स को देख नहीं पाता है, बट ये सर्वर सेंड करता है सेशन ट्रैकिंग के लिए। Hidden form detail get passed to the server through the HTTP request. ये कैसे पास होते हैं, सर्वर से HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू पास होते हैं। यहाँ पे हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज जावा सर्वर पेजेस, मींस JSP। दिव्या कब ज्वाइन किया आपने? मुझे पता, आज रिपीट करा देती हूँ आज मैंने क्या क्या कराई। ओके, सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस हो गया, उसके बाद सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस हुआ, उन लोगों के बीच का डिफरेंस देखे, सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का बीच का डिफरेंस देखे। उसके बाद सर्वलेट कॉन्फ़िग के मेथड्स देखे, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के मेथड देखे।
देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सर्वलेट कम्युनिकेशन, वो देखें। उसके बाद था सेशन ट्रैकिंग। सेशन ट्रैकिंग में 4 अपने डिफरेंट वेज से करते हैं सेशन ट्रैकिंग। फर्स्ट है एचटीटीपी सेशन, सेकंड है कुकी, थर्ड है यूआरएल रिलेटिंग और फोर्थ है हिडन फॉर्म फील्ड। इसमें फर्स्ट एचटीटीपी सेशन देखे हमने। एचटीटीपी सेशन में उसके मेथड्स देखे, फिर कुकी देखे, कुकी के मेथड्स देखे, और यूआरएल रीराइटिंग के कोई मेथड नहीं है, हिडन फॉर्म फील्ड के भी मेथड्स नहीं है, ये दोनों देखे, यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फॉर्म फील्ड, ये 4 चीजें देखे। यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जावा सर्वर पेजेस। आज किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। अगर आप लोगों को इसका देखना है लेक्चर तो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।